Right. So first thing, good evening, everybody, and welcome to the second session of this Career Me and Success. Let's see how it progresses today. So, one of the things that I want to do with you is actually interact with you on and check with you how was your last week in office. You know, end of the day, what happened in office. So, any one incident you could share, or 5 minute के लिए you can have a general talk. This happened in the office, this is what I like, this is what I didn't like, I had a conflict, I had this, I had that. Maybe you could just share things that you feel like sharing. Okay, I can go first. Yeah, please, Raj. Yeah. I didn't have any particular conflict or anything, but since I have recently joined my company, I'm still learning the ropes and getting myself acquainted with everyone. Uh, like I was given some new work in this current sprint, and I'm working on it. And the task that I have been given, I'm not uh, like I don't have a lot of knowledge about the task right now. So I'm. It's also a practice for me, and because for the last few sprints, mostly I was given tasks which involved learning. So I didn't have a lot of hands-on coding experience till now. So this time I'm a bit excited that I've been given this opportunity. So I'm working on that. Uh, I'm more busy this week compared to the last few sprints because of the work. So it's been going great till now. All right, Harsh. So tell me about this task that you have been given. So where you have little knowledge, but you have been told it's an important task that has been given. कुछ highlight करोगे? Uh, Basically, it's related to testing, and initially I was a bit skeptical to take the task because I don't want to get much into testing, but testing in itself is a bit complicated task because you need to ये understand. software testing है? Yeah, software testing. So it's a bit complicated because you have to first understand the code or what the other person has written, and then you have to start writing your own test cases. So it also involves a lot of interaction with the person who actually wrote the code. Uh, like if you get stuck somewhere, then you have to contact them and all that. So yes, that's about the task. Let me ask you one thing. Yeah. How long has it been given to you? एक दो दिन? Yeah, it's been last week only they gave us the task. Okay. So how has it been? अभी तक experience कैसा? It's been a bit daunting because अभी तक इतना करा नहीं था कुछ उस फील्ड में मतलब I was given the task with someone else before, so very basic stuff I did, and so now the entire thing is given to me. So yes, and it's been only like today is the third day of the sprint because Friday was a holiday, and yes, that's about the task. So, just as a tip to you, Yeah. this is the time, this is the today what we're going to do, that perception battle. You will see Yeah. how it becomes so relevant in this day, the task you are doing. समझ रहे हो? तो ये जो task तुम कर रहे हो, because now what you do, you will build perception about yourself in the system. ठीक है? Yeah. How people will see you, how your managers will see you, how your colleagues will see you, how system will see you. How you interact with the system. System means your organization. And now you will Yes. see everything you do will be revolving around that. And everything you do, you will create a perception. Who is Harsh? The question is, कौन सा हर्ष बनना चाहते हो? How do you want to be perceived yourself? Okay? Yeah. We will discuss all this today.
But this is very important. Good, you raised this topic. And in these kind of interactions every week, we will be touching upon these things. Okay. तुम देखोगे इसका ये कैसे अहमियत रखता है और what you should be doing regularly to build a positive perception about you. A positive means a very progressive perception. You're very young in the job, just 2-3 months. You need to establish yourself. Good. Yes. Chalo Harsh, good, nice. I really liked it. ऐसे ही share करना अगले बार भी. So these things I will need to. Next time you share an experience. क्या अच्छा रहा, क्या बुरा रहा, इसी में. Maybe we want to know more. Yeah. We want to know more. Yeah. Sure. Thanks, Deepak. Yeah. Yeah, Himanshu. Yeah. So hi, Deepak. Yeah, hi. Basically, this is my second company अभी, और यहाँ पे अभी मैंने अपना ऑफिस भी विजिट नहीं किया है. इवन कोरोना टाइम में ही मेरा इंटरव्यू हुआ एंड उसके बाद फिर मैंने ये ऑफिस ज्वाइन किया यहाँ पे, इंटर्नशाला की कंपनी. एंड फर्स्ट जो मेरी कंपनी थी उसमें भी मैंने लगभग 2 year and 6 months मैंने अप्रोक्स वहाँ पे मैंने बिताए. और उसके बाद फिर क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तो कोरोना वाला वो टाइम आ गया था, और फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों से हो गया था ऐसा कुछ, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, और वो बहुत छोटी कंपनी थी. ऑल्दो वहाँ के क्लाइंट्स बहुत अच्छे थे, बट वहाँ पे मेरे को काम का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिला. लाइक कि वहाँ पर मेरे को अलग अलग डिफरेंट काम करने का मौका मिला, जैसे कि अभी यहाँ पर नहीं है जो कि चीज़, राइट. सो अभी यहाँ पर आके मेरे को लगभग 1 साल पूरा हो गया है. एंड लास्ट जो मेरा अप्रेजल था वो जितने मैंने एफर्ट्स किए, ऑल्दो उस तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ऑल्दो एक पूरा का पूरा मैंने टास्क जो मेरा था, मैंने वो पूरा हैंडल किया था पूरी टीम को एज अ टीम लीड. बट मतलब वो उस तरह से मुझे रिकॉग्नाइजेशन यहाँ पर नहीं मिला यहाँ पे इस कंपनी में. हाँ, इस कंपनी में. तो लाइक मुझे लगा कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा ही एफर्ट्स कर दिए हैं, है ना. मतलब मैं ज़्यादा ही पॉजिटिव हो गया हूँ कंपनी को लेके. फिर मेरे को लगा कि चलो लेट इट बी. और अब फिर मैंने क्या किया कि मैंने ना थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स मूड में लाना शुरू किया धीरे धीरे कि मैं काम तो कर रहा हूँ, बट मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मुझे उसका भी काम करना है, मुझे उसका भी करना है, मुझे इसका भी करना है, राइट. तो मैंने थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करने का कोशिश किया है अभी, कि मैं ऐसा करता हूँ कि लाइक अगर मैंने नेक्स्ट 2 days का काम अगर मैंने कर लिया है, फिर नेक्स्ट डे का मैंने अगर काम कर लिया है, तो मैं अगले दिन थोड़ा रेस्ट करता हूँ और वो काम तभी डिलीवर करता हूँ, सो दैट कि वो एक सिंक रहे उससे काम से. Okay. So Right. yeah, I get what you understand. So appraisal challenges तुम्हारे पास ज़्यादा आ गए. But tell me, तुम्हें क्या लगता है अप्रेजल क्यों तुम्हारा खराब हुआ? अप्रेजल मेरा क्यों खराब हुआ? शायद इसलिए क्योंकि मैंने जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तब मैंने हाइक उनसे मतलब अपने अकॉर्डिंगली ली थी, इसलिए मतलब मैंने नेगोशिएट कर लिया था उस टाइम पे. क्या मतलब मेरे सैलरी को लेकर ज्यादा सैलरी ले लिए थे? हाँ, मतलब जो वो मुझे ऑफर कर रहे थे वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था. मैंने बोला था कि उसको मतलब सैलरी स्ट्रक्चर को दोबारा से उस पे So how has that got to do with appraisal? मतलब मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं शायद अपना बैलेंस बना के चलते हैं कि यार इसने पहले इतना ले लिया तो अब इसको इतना नहीं मिल पाएगा, ऐसा कुछ शायद उनका पर्सपेक्टिव रहता है. मेरे 1-2 फ्रेंड्स हैं जो कि जॉब में ही हैं, और उन लोगों ने भी ऐसे ही बोला कि देख तू कितना भी कर ले, ठीक है, बट वही होगा जो मंजूर खुदा होगा. Okay. Right. So Himanshu, perception, ये जो तुम्हारा appraisal है, has lot to do with perception. How your manager perceives you is far more important. अभी मैं तुमसे ये बहुत पूछा नहीं है कि तुम्हारा मैनेजर तुम्हारे बारे में क्या सोचता है. Obviously, as we discuss, अभी आज डिस्कशन होगा, कल परसों 2-3 सेशन होगा. You know, हिमांशु और हर्ष तुम दोनों को एंड ऑफ द डे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही आदमी बहुत मायने रखता है तुम्हारे लिए, वो है तुम्हारा मैनेजर. मैनेजर खुश है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा अच्छा लगता है. मैनेजर दुखी कर देगा तो ऑर्गेनाइजेशन सबसे खराब लगता है, यू नो.
ये तुम अब तक महसूस कर लिए होगे। ओके, और ऑर्गेनाइजेशन में तुमको मैं हकीकत में बताता हूँ, मेरा 27 साल का जो भी एक्सपीरियंस रहा है, इट्स ऑलवेज अ परसेप्शन बैटल। तुम देखोगे, तुम दोस्ती भी करते हो ना, परसेप्शन पे करते हो। तुम ये सेशन भी ज्वाइन किए हो ना, तुम्हारा परसेप्शन है कुछ, तो यू हैव सर्टेन थिंग्स इन माइंड, ओके, एंड योर परसेप्शन इज नहीं, यहाँ से मुझे कुछ मिल सकता है। राइट, हाँ। नहीं, वैसे भी मेरा जो रेटिंग था ना, लाइक अप्रेजल में और ऑल ओवर जो जितना भी रहा, तो 5 में से मेरा 4.15 रहा था, ठीक है। और मेरे को लगभग 9 मंथ्स ही हुए थे उस टाइम तक, बट फिर भी मैंने, क्योंकि मेरे पास मेरा फ्रीलांस का एक्सपीरियंस था थोड़ा सा कॉलेज टाइम का, तो मैं अच्छे से टीम को हैंडल कर पा रहा था, लोगों को खुद से जाके मतलब उनको पूछ पा रहा था, अच्छा तुम्हें यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो उसने बोला हाँ मुझे आ रही थी, तो मतलब उसके बोलने से पहले ही मैं उसको रीच आउट कर रहा था, राइट। तो ये सब कुछ चीजें थी, तो मेरे मैनेजर ने ऑल्दो मुझे अप्रिशिएट किया अच्छे से, बट वो फिर शायद कंपनी का ऐसा कुछ पॉलिसी थी कि अभी हमारी सेल एंड ऑल ये सब कुछ नहीं हुई है यार, ये वो। और फिर हमारा 50% जो हमारा अप्रेजल था वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे था, और 50% वो हमारे पर था कि हमने किस तरह से परफॉर्म किया, जो हमारी परफॉर्मेंस थी। सी हिमांशु, हम तुमको पर्सनल उस पे नहीं ले रहे हैं, यू नो, आई अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, और बहुत बुरा टाइम चला है कोविड की वजह से लास्ट 1 ईयर। सो हाउ दिस इज द प्रिपरेशन फॉर टाइम्स टू कम, क्योंकि आने वाले दिनों में देखो, स्थिति अब थोड़ी सुधर रही है मार्केट प्लेस में, लेकिन उतनी नहीं सुधरी है। हाँ, तुम्हें अब करना क्या है, तुम्हें अब देखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा तुमको you will need to really regroup yourself। तो हम ये नहीं कह रहे हमको क्या तुम्हें करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं मालूम, पर जैसे जैसे हम लोग ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपस में, तुम्हारे पास आंसर्स अपने आप आने लगेंगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हें आंसर्स नहीं दूंगा, पर ये पूरे नेक्स्ट 2-3 सेशंस में तुमको कुछ टूल्स देंगे डिस्कशन के लिए, सोचने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तुम लोग को पता चल जाएगा आंसर्स कहाँ है, ठीक है। See, as a mentor, remember only one thing: as a mentor and coach, I will never give you any suggestion. तुम देख लेना, over the next 6 months एक भी suggestion तुम मुझसे नहीं पाओगे, एक भी माने suggestion मतलब ये करो, ये नहीं कहेंगे हम कभी। I will लेकिन create situation where you will know what you have to do, and that is the power that you, because what you will tell that you will do is what you will own up. If I tell you, then वो तो तुम कहोगे ठीक है कर देंगे, लेकिन नहीं होगा। Done, Bob? Yeah. Sure. So what I got a good idea, Harsh and Himanshu, about your city, and this is what we'll be continuing to do every week. Spend some time, and थोड़े दिन के बाद we will discuss each other. ये वाला स्थिति, तो आज थोड़ा सा let's move ahead. So I want to share with you something. So last time किसी ने कुछ लिखा था, your expectations from me, we are taught something new every session. Give real life examples of situations and confidence and positive vibes. Okay, so these are the things that you are looking from me, and it is perfectly normal. It is good that you are very clear as to what you expect from me. Now let's do one thing. So now all of you, just थोड़ा सा जल्दी अगर कर सकते हो तो तुम लोग कर सकते हो। दो स्टिकर हर पॉइंट पे डाल दो। हर एक, तुम ये ग्रीन वाला सोचो, हर्ष ले लो, हिमांशु यू टेक द ब्लू वन, यूज द पोस्ट-इट एंड पुट 2-3 post-its for every square. Now what is the squares manager thinks about you? What does the manager think about you? Okay, so you write 2-3 points. What does the manager hear about you? तुम्हारे बारे में क्या सुनता है लोगों से? ये तुम्हारा अपना परसेप्शन है, क्या सुनता है। What does the manager feel about you? तुम्हें बातों से तुम्हें लग जाता है क्या मैनेजर तुमसे फील करता है तुम्हारे बारे में। और मैनेजर, what does the manager see in you?
मैनेजर तुम्हें क्या देखता है, ये तुम्हारा परसेप्शन होगा, लेकिन तुम लिखो ये 4 2 पॉइंट हर जगह लिखो जरा सा। आई एम गिविंग यू 4-5 मिनट्स। दीपक, सो बेसिकली जैसे मुझे अभी इतना टाइम हुआ नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, सो आई माइट नॉट हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स टू राइट। ये महसूस करने की बात है हर्ष। अच्छा। ये 2-4 सेशन मीटिंग की होगे बॉस से, 3-4, तो तुम महसूस कर लिए होगे अब तक। तुम जो भी महसूस किए हो, अगर तुमको लगता है 2 पॉइंट नहीं है, एक ही पॉइंट है, तो एक ही पॉइंट सही। ठीक है। पोस्ट-इट में डाल सो देना। यूज अ या तो पोस्ट-इट। दीपक, ग्रीन वाला बॉक्स इज फॉर मी, राइट? या या कुछ भी ले लो। अरे तुम ऐसे ले लो, ओके। just अच्छा। ऐसे ऐसे अपना नाम लिख देना ऊपर, बस यही है। ऐसे हाँ, क्या बस मैं वही पूछ रहा था। नाम लिख देना। वैसे हिमांशु, यू आल्सो पिक अप, हम तुम्हारे लिए कैसे डाल दे रहे हैं, सो यू पिक अप समथिंग। ऐसे कुछ डाल दो।
ओके, थोड़ा सा जल्दी कर लो। हो गया? Yeah, I think I'm done. हिमांशु हो गया? या दीपक. Okay, good. So just give me a minute. Let me just look at Harsh. Harsh ka manager thinks that he wants to learn good, works hard to come and complete tasks before deadline. इसका मतलब तुम्हें काम दिया गया था, तुम बड़े तेजी में खत्म किए हो. Good. So that's a good perception. Has potential on different. Another good perception. Asks important questions. Okay, that's really nice. So let's look at Himanshu. There's potential in this employee. And what I'm doing is, Himanshu is very detailed. So this is what he is. Very detail oriented. He understands the subject very well. Only then he works on it and gives feedback, suggestions on his own. Okay. Manager feels about you, although he is very good in his work, but he's a bit introvert. Himanshu can be given a responsibility, but there is a problem. Okay. Good, Himanshu. And Harsh, thank you for actually sharing this. तो ये जो तुम लोगों ने पॉइंट लिखा है, हम लोग इसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है? लेकिन कॉन्सेप्ट से करेंगे. We'll go through certain concepts and we'll try to see explore through concepts. Okay. I want to tell you a very interesting story. So now the story is a very small story, but I think ये मायने रखेगा तुम्हारे लिए. And this story is about वो जो महूत होता है ना, हाथी पे जो हाथी जो संभालता है, महावत बोलते हैं. महावत. हाँ, महावत. वो उसके बारे में है थोड़ा सा. तो क्या होता है, छोटा सा कहानी है. एक महावत होता है, वो हाथी के ऊपर रहता है. और कितना बड़ा छड़ी होता है जिससे वो हाथी को संभालता है? बहुत छोटा सा छड़ी होता है. मतलब उस हाथी के बराबर का अगर जानवर है, लेकिन छड़ी उसके बहुत छोटा होता है. अब वो छोटा हाथ छड़ी से वो क्या करता है, वो हाथी को आगे बढ़ाता है जहां उसको ले जाना पड़ता है. लेकिन जब ये हाथी आगे बढ़ता है, वो अगर हाथी बढ़ता है, तो अगर हाथी को ना अगर एक ग्रीन पैच मिल जाता है ना, ग्रीन पैच जहां उसको घास और पेड़ पौधे बहुत मिल जाते हैं, खाने को भूख लगता है, तो हाथी क्या करता है, वो मुड़ जाता है उस तरफ, पेड़ पौधे की तरफ. हाँ, पेड़ पौधे की तरफ वो मुड़ जाता है. तो और वो हाथी वहीं जाता है, वहां खाने लगता है. लेकिन एक बात सोचो, अब तक मोहब्बत जो है क्या सोच रहा था, हाथी मेरे साथी, हाथी मेरे कंट्रोल में है. मैं उसको छड़ी से आगे ले जा रहा हूं. पर क्या हुआ, अचानक कुछ फल, कुछ पेड़ दिखे, हाथी क्या किया, मुड़ गया.
मुड़ गया। अब ये बताओ, तुम लोग को ये मैं एक कहानी डाल दिया, वो मुड़ तो गया। ऑब्वियसली मोहब्बत को कुछ दिक्कत हुई, वो सोचा जितना कंट्रोल है नहीं है। ये स्टोरी अगर तुम सुनते हो तो तुम्हें क्या महसूस होता है, क्या तुम्हारे दिमाग में आता है? तुम अगर अपनी जिंदगी में रिलेट करो तो क्या समझ में आ रहा आई थिंक कि जो हमें लगता है हमारे कंट्रोल में है वो हमेशा ऐसा होता नहीं है। है? ओके, तो क्या चीज कंट्रोल में है जो तुम सोचते हो है लेकिन ये अभी होता नहीं है? इवन हिमांशु तुम भी बताना। हाँ हाँ, बोलो फिर, क्या चीज कंट्रोल में है तुम्हारे जो अभी हो नहीं रहा है? आई थिंक मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से हमें लगता है कि कोई टास्क हम करने वाले हैं वो हम इतने टाइम में कर लेंगे आराम से, पर फिर टास्क एक्चुअल में काफ़ी बड़ा होता है और हम उसे पूरा नहीं कर पाते। समथिंग लाइक हाँ? दैट। खत्म नहीं हो पाता या कर नहीं पाते हैं? हाँ, ओके, तो तुम्हारे ऊपर क्या प्रेशर होता है, तो तुम पे क्या आता है? तो अभी तो एज सच कुछ ज़्यादा ऑफिस से है नहीं प्रेशर, बट मैं अपने फ्री टाइम में कुछ अदर डेवलपमेंट रिलेटेड स्टफ करता हूँ, जैसे मुझे नहीं नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन तुम टाइम से खत्म नहीं कर पाते हो तो क्या होता है तुम पे, कैसा प्रेशर क्या होता है, तुम अंदर से कैसा फील करते तो मतलब आई थिंक कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है कि हमने सोचा था और ऐसा हुआ नहीं, और फिर अगर हम कुछ आगे करने वाले हैं तो उसके लिए हम थोड़े कभी कभार डीमोटिवेट हो जाते हैं कि शायद हम पूरा नहीं कर पाए अभी। तो वो एक इशू कभी कभार होता है, और जब हम कर लेते हैं उसे तो हमें और कॉन्फिडेंस आता है कि हम और अच्छा काम कर सकते हैं। तो वो तो एक तुम चीज। जैसे तुमको कभी कुछ हुआ ऐसा कि जो तुम कर नहीं पाए, कोई तुमको कमेंट कर दिया तुम्हारे ऊपर? वो तो मोस्टली पेरेंट्स ही बोलते हैं ऐसा अभी तो। पेरेंट्स छोड़ो, अभी इस हाँ, मेंटरिंग में पेरेंट्स को थोड़ा सा दूर रखेंगे, बट वी विल डू इट, वी विल टच देम। बट लेकिन तुम्हारा बॉस कुछ कहता है? अभी तक तो नहीं। आई थिंक मे बी इंटर्नशिप में कभी एक बार बोला होगा। मतलब अ, वो उन्होंने इतना भी कुछ नहीं बोला कि उन्हें भी पता था कि टास्क इतना सिंपल नहीं था। हाँ दीपक, एक्चुअली मेरे को क्या लगता है ना कि स्टार्टिंग में उन्होंने एक दो बार चीज़ों को अप्रिशिएट किया, जैसे कि तुमने, हाँ, स्टार्टिंग में मत, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन की थी कंपनी तो मुझे एक मुझे मिनट तो हिमांशु, तो एक मिनट, हाँ, एक मिनट, तुम्हारे पर आ रहे हैं जरा, इनका हर्ष का एक बात कर रहा है। हर्ष तुम देख रहे हो ना, तो हाँ, योर हाँ, परसेप्शन, कैसे परसेप्शन, देखो कोई भी चीज है ना, सब कुछ परसेप्शन पे आ जाएगा। तो हम जब तुमसे क्वेश्चन पूछे, व्हाट डज अ मैनेजर थिंक अबाउट यू नाउ दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू कंप्लीट द टास्क, हाँ, देखो ये परसेप्शन पे आ गया। ओके, अब तुम देखोगे धीरे धीरे, क्योंकि तुम्हारा जो आउटकम है, आउटपुट है, वो उसके लिए इनपुट है, उससे वो परसेप्शन बना रहा है। देखो अभी कैसे लिख रहे हो तुम, वो तो ही हैज पोटेंशियल टू वर्क ऑन डिफिकल्ट टास्क, हाँ, लेकिन अभी पोटेंशियल बोल रहा है, हाँ, ही इज नॉट सेइंग ही कैन डू इट। ठीक है, अभी वो ही कैन पे नहीं आया है, और ही कैन डू इट पे नहीं आया है, ही हैज गॉट अ पोटेंशियल। तो धीरे धीरे तुम अभी महसूस करोगे कि क्या हो रहा है, कॉन्सिक्वेंस क्या होगा। ठीक है, जस्ट पार्क इट ओवर हियर, थोड़ा सोच लो। मैं तब तक हिमांशु से ये इनपुट ले लेता हूँ। हाँ हिमांशु। हिमांशु। या दीपक। हाँ, तुम्हारी लाइफ है, अब बताओ ये एलिफेंट वाला स्टोरी, एलिफेंट और मोहब्बत वाला स्टोरी कब बताओ, हाउ डज इट हाँ, फिट सो इनटू यू? स्टार्ट ने इंटर्नशाला कंपनी ज्वाइन की थी, तो उस टाइम पर मुझे कोविड हो, बट मैंने विद इन वापस से ज्वाइन कर ली ग्रेजुअली। मतलब मेरी स्पीड अच्छी स्टार्टिंग में नहीं थी, क्योंकि मैं रहा था कि होता है एंड ऑल, बट धीरे धीरे बहुत अच्छे से किया।
और एक मिनट तो होल्ड मेरे करना, एक मिनट होल्ड करना। क्या? ये चल रहा है and it might take lot of data. ठीक है, ओके, या हिमांशु। सो धीरे धीरे करके मतलब उनका कॉन्फिडेंस आया मेरे ऊपर अच्छे से कि हाँ मतलब मैं अच्छे से कर रहा हूँ। उन्होंने एक दो कैचअप्स में मुझे मतलब बोला भी ये चीज़ कि तुम्हारा ये है, बस थोड़ा सा और अभी तुम्हें और चीज़ें हैंडल करनी है। तो स्टार्टिंग अब फिर धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे टाइम जाता रहा ना, तो फिर मेरे को लगता रहा कि मतलब अब ना ये एक चीज़ शायद मेरे को दीपक ऐसा लगता है कि कोई अगर सपोज अगर मैं इस लेवल पे कुछ चीज़ को बना रहा हूँ, ठीक है, तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये हो जाती है कि यार ये तो इसका लेवल है ही, अब इससे ऊपर क्या, राइट? जबकि वो जो जिस लेवल पे मैं आके वर्क कर रहा हूँ, वो उसमें मेरे बहुत ज़्यादा मतलब मैं उसमें बहुत ज़्यादा अपना काम करता हूँ, बहुत ज़्यादा मेरी मेहनत जाती है उसमें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उसको डिटेल्ड करता हूँ ताकि मेरे में फीडबैक्स बहुत कम से कम आए मेरे काम में, है ना? तो फिर मेरे को लगता है कि एक टाइम पे आके शायद मैनेजर ये सोचने लगते हैं कि अरे मतलब इससे ये तो एक्सपेक्टेशन है ही, अब इसके ऊपर क्या? और भी तेज़ या फिर और भी अच्छा क्या? है ना? तो ये चीज़ मेरे को लगती है कि मत उनका परसेप्शन तो ऐसा कोई मेरे को वो लगता नहीं है कि मतलब यही यही रहने वाला है। क्योंकि बीच में पॉज़िटिव भी आई थी और अभी मैंने जैसे थोड़ा-सा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस तरह से वर्क शुरू कर दिया अपना, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, राइट? तो क्योंकि क्या हो रहा था कि मुझे बैक टू बैक वर्क मिल रहे थे और मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, तो मुझे भी मेरी बॉडी भी रेस्टलेस हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि मुझे अभी थोड़ा-सा टाइम चाहिए, तो इसीलिए मैं अभी कुछ टाइम पहले अभी मैं शुभांक के पास था, इसीलिए कि मुझे एक ब्रेक चाहिए, राइट? तो ऑल्दो मैं वहाँ से भी वर्क कर रहा था बट मैं इसीलिए शुभांक के यहाँ पर गया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरे पास वर्क प्रेशर ज़्यादा आ गया है मतलब मेरे ऊपर। और एक और चीज़ होती है दीपक, मैं ना अपने काम में मतलब जो कहते हैं ना कि काम चोरी वाली बात, वो पता नहीं क्यों मेरे से हो नहीं पाती उस लेवल पे आके, कि मेरे को लगता है कि नहीं मेरी तरफ से जा रहा है ना, तो वो बिल्कुल एकदम सही ही जाए। मतलब ऐसे नहीं बस मैंने कर दिया और मैंने भेज दिया। ये मेरी प्रॉब्लम है और इस वजह से कभी-कभी क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता हूँ अपने काम में, बजाए कि और लोगों की वजह से, क्योंकि उनके काम में क्या होता है बार-बार फीडबैक्स आते रहते हैं, वो लोग करते रहते हैं। बट मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है कि मैं उसको फिनिश करके ही बिल्कुल एकदम अपनी तरफ से कि मेरी तरफ से ये 100% है, उसके बाद ही उसको डिलीवर कर पाता हूँ। तुम ये चीज देख रहे हो, इसको तुम अपनी लाइफ से, ये स्टोरी को लाइफ से रिलेट करो। तुम सोच रहे हो तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, हुँ, लेकिन कुछ डिस्टरबेंस हो जा रहा है, जैसे कि टाइम कम मिल रहा है। हुँ। नहीं, जितने टाइम भी मतलब पूरा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट क्या होता है कि बीच में कभी-कभी फीडबैक्स चीज़ों पे इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि सपोज़ मेरा जो मेरा को-मैनेजर है, वो मेरे से चेंजेस करा रहा है, फिर जो मेरा मैनेजर है, वो भी उसको अप्रूव करता है अपनी तरफ से, तो उसके भी फीडबैक्स, इनपुट्स कुछ होते हैं, तो उसमें और ज़्यादा टाइम लग जाता है, ऐसा कुछ। यही हरा पैच है जो तुमको डाइवर्ट कर रहा है। मैनेजर्स फीडबैक, ऑल दीज आर द पैचेस। जो तुम सोच रहे थे तुम अपनी गाड़ी लेके आगे बढ़ रहे हो, तो गाड़ी मुड़ गई। हुँ, क्यों मुड़ी? क्योंकि एक हरा पैच आ गया। हरा पैच, नीला पैच, सूखा पैच, कुछ भी पैच, बट एक पैच आ गया, तुम मुड़ गए, तुम्हें मुड़ना पड़ा। तो अभी तुम ना ट्रांजैक्शन में मत रहो। क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हो रहा है, उसको ट्रांजैक्शन हो रहा है। थोड़ा सा 10,000 फीट ऊपर पे आके सोचो, आखिर एक्चुअली मुझे काम दिया गया था, मैं बड़े मजे में कर रहा था, डाइवर्ट हो गया, फोकस खत्म हो गया कहीं। क्यों खत्म हुआ? कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने कुछ लोगों की वजह से मुझे चेंजेस करने पड़े, कुछ करने पड़े। लार्जर लेवल, अपने दिल पे मत लो, ऊपर करके देखो, तो तुम देखो कि हाँ यार, कुछ पैच आया था मेरी जिंदगी में, काम करते समय कुछ पैच आया था और मेरे वो पैच पे मैं मुड़ गया। तो आप यहाँ पर मुझे हाथी और मेरे मैनेजर को महावत बना रहे हैं, ऐसा? तुम महावत हो ही, तुम अपनी जिंदगी खुद चला रहे हो, हुँ, समझ रहे हो ना? यू आर योरसेल्फ द महावत। क्योंकि
महावत तुम्हारा मैनेजर नहीं हो सकता, महावत तुम हो, हाथी तुम चला रहे हो, तुम सोचते हो कि कंट्रोल में है कि नहीं है, लेकिन वो पैच काम करते वक्त एक पैच आता है, तुम मुड़ जाते। समझ रहे हो ना? हम तुमको मेटाफोरिकली बता रहे हैं, देयर सर्टेन थिंग्स आई कांट टेल यू डायरेक्टली ऑन योर फेस, बट हम क्योंकि हम परिस्थिति नहीं जानते, बट आई वांट टू यू टू सी दिस थिंग फ्रॉम अ मेटाफोरिकल पर्सपेक्टिव कि हाँ महावत हाथी, तुम्हारा काम बड़े मजे में कर रहे हो और कुछ डिस्टरबेंस आता रहता है सामने, काम मुड़ गया कि नहीं मुड़ा, समझ रहे हो ना? तो ऐसे समझो, मेटाफोरिकली समझो, मत परेशान मत हो कि आखिर मेरे साथ हुआ कि नहीं हुआ, मैं भी छोड़ दे रहा तुमको, जस्ट एट अ मेटा लेवल रहो, मेटा लेवल रहना बहुत जरूरी। देखो मेंटरिंग में और तुमको मैं बार बार मेटा लेवल पे लाऊंगा। मेटा लेवल मतलब हायर लेवल, जहां तुम्हारी सोच इंपॉर्टेंट है, क्या करते हो इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां तुम्हारी सोच इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना हर्ष? आई थिंक जितना मैं समझ पा रहा हूँ आप ये कह पा रहे हैं कि लाइक मैं खुद से अलग होके खुद को अलग एक हिमांशु समझ के देखो कि हिमांशु क्या कर रहा है। हिमांशु क्या कर रहा है देखो, ऊपर से हिमांशु कर क्या रहा है, तब तुमको ज्यादा समझ में आएगा। हम इसीलिए तुमको मेटाफर समझा रहे हैं, हम तुमको उपदेश नहीं, वो तुमको ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हम तुमको मेटाफरिकली बता रहे हैं। तुम अपने आप को महसूस करो कि हाँ मेरे महावत तक मेरे हाथी चल रहा मुड़ गया। हर्ष का भी साथ ऐसे ही होता है, अभी हर्ष नई जिंदगी में, बट अगर पर्सनल लाइफ में भी देखो ऐसे ही चलता है। जो जिंदगी में चाहते थे कहीं ना कहीं डाइवर्जन आया है। क्लियर? क्लियर। तो यही होता है, तुम लोग की लाइफ में ऐसे ही होगा। मैं तुमको यही बताना चाह रहा था कि ये बहुत कुछ होने वाला है, और ये जो भी होगा ना, इससे तुम परसेप्शन क्रिएट कर रहे हो। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या महसूस करेंगे, क्या कहेंगे, क्या देखेंगे तुम में, वो तुम्हारे कार्य के, तुम्हारे काम के आउटकम पे होगा। और वो जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ष और तुम हिमांशु, तुम एक चीज याद रख लेना, ए से बी जा रहे हो, destination is equally important, I'm sorry, destination is important, but the journey in the destination is equally important. Destination is important, but the journey is in the destination is equally important. हम तुम एग्जाम्पल देते हैं, तुम जयपुर से दिल्ली गए, एग्जाम्पल तुम दिल्ली में पहुंच गए हो, जयपुर से दिल्ली गए is a destination, पर कार से गए, ड्राइव करके गए, मजा आया, रुक के ढाबे में बैठ के खाना खा के चाय पी के सिगरेट उड़ा के हम एंजॉय करते करते घर पहुंचे। वो एक जर्नी है, उस जर्नी में तुमने बहुत कुछ किया है टाइम से पहुंचने के लिए घर। समझ रहे हो ना? ये जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये मैं तुमको बता रहा हूं, तो ये जर्नी जो तुम गुजरोगे, डेस्टिनेशन जो काम करोगे, आउटकम जो होगा, ये इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसका नतीजा बहुत चीजों पे आएगा। हम तुमको बस इतना महसूस कर, ऐसे भी सोचो, दूसरे तरह से भी सोचो। ये है कि अनकॉन्शियस माइंड जो होता है ना हम लोग का, वो अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, हम कॉन्शियस माइंड मतलब ये होता है, मेरे सोचने का दायरा बहुत कम होता है, जानते हो। मैं तुमको एक एग्जाम्पल देता हूँ हर्ष और हिमांशु, तुमको बड़ा मजेदार एग्जाम्पल है। तुम अभी अपने कमरे में बैठे हो ना, मैं तुम लोग को कमरे में देख रहा हूँ, एक कमरे में बैठे हो,
मालूम है कितना बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हारे सर पे आ रहा है, तुम्हारे सेंसेस को मिल रहे हैं? कौन से सेंसेस हैं? आईज, योर साइट, योर हियरिंग, योर टेस्ट, योर एवरीथिंग। ये जो सेंसेस को कितने बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं मालूम है? एनी वेग आइडिया? 10 हाँ, बिट्स मतलब हम वैसे बोल रहे हैं यूनिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। 4 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कितना? 4 मिलियन। 4 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हर कलर का, हर चीज का, तुमको इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। तुम्हारा माइंड कितना प्रोसेस कर सकता है? कितना प्रोसेस कर सकता है? गेस करो। एक बारी में 7 to 10 words, which means 7 to around 25 bits of information per second. जो 25 bits of information per second तुम्हारा माइंड प्रोसेस करता है, और कितना बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आता है तुम्हारे खोपड़ी में, योर सेंसेस को? 4 मिलियन। 4 मिलियन। Where does the remaining information go to? डिस्कार्ड कर देते हैं हम। डिस्कार्ड नहीं करते हैं, अब सब कॉन्शियस में भेज, सब कॉन्शियस में भेज देते हैं। सबकॉन्शियस में। समझ रहे हो? क्योंकि जैसे कि तुमको सुबह मालूम होगा, तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुबह क्या नाश्ता किया तुमको मालूम, अभी हम बोलेंगे तुमको याद आ जाएगा। हाँ। लेकिन अहमियत नहीं रखती है, वो नाश्ता जो किया वो करके भूल गए, लेकिन इंफॉर्मेशन तो है माइंड में ना। तो कहाँ से आया? अनकॉन्शियस माइंड से आया। मैं तुमको ये बताना चाह रहा था कि ये तुम्हारा बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहे हैं। तो जब तुम ये देखोगे, ये देख रहे हो डायग्राम, तो ये 4 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या हुआ? सबकॉन्शियस में चला गया। तभी तुम देखते हो अभी जैसे कि वो मौत जो है, वो जब चला रहा था हाथी, उसको बस इतनी मालूम था कि मैं तो संभाल लूंगा, लेकिन उसने देखा नहीं कि एक ग्रीन पैच पड़ा हुआ आगे, हाथी को हो सकता है भूख लगी हो या कुछ चीजें हुई हो, उस पर ध्यान नहीं दिया। सबकॉन्शियस, सब इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस में चला गया। कॉन्शियस में क्या था? यार मुझे यहां से वहां जाना है, और हाथी पे बैठ गए और चलो चलते हैं। समझ रहे हो? तो ये देखो क्या होता है, एक इसको कहते हैं एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल। ये तुम समझ लो, ये तुमको मैं बताना चाहता हूं। एक मिनट जरा होल्ड करना, 8:45 हो गया। ओके, ये तुमको बताना चाहता हूं, ये तुमको, मुझे 5 मिनट लगेगा बताने में, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा गौर करके सुनना। जैसे कि हिमांशु ने कहा कि मेरा अप्रेजल का जब तुम्हारे पास आया, वो एक एक्सटर्नल इवेंट है। जैसे कि हर्ष ने कहा मुझे काम दिया गया, वो एक्सटर्नल इवेंट है। जब वो एक्सटर्नल इवेंट मिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन लेके जब आता है, वो आपके आंखों के थ्रू, सेंसेस के थ्रू, ये देख रहे हो चेहरा, सेंसेस के थ्रू तुम्हारे माइंड में घुसता है, ब्रेन में। वहां क्या करता है? ये प्रोसेसिंग करता है, कितना मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, कितना इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। उसने क्या करता है? डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज करता है इंफॉर्मेशन को। मैं तुमको हर चीज का नोट्स दे दूंगा, तुम लोग पढ़ लेना। बहुत सिंपल टर्म से मैंने नोट्स बना के तुम्हारे लिए रखा है। क्या करता है? इंफॉर्मेशन, अब 4 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन तो नहीं रख सकता, तब तो तुम सुपरमैन हो जाओगे। तो तुम ह्यूमन बीइंग रहने के लिए तुम्हारे पास 25 बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन या 7 ± 2 वर्ड्स का प्रोसेसिंग होता है। तो इतना इन्होंने डिस्टॉर्ट कर देता है।
इतना डिलीट कर देता है, इतना डिस्टॉर्ट करता है, इतना जनरलाइज करता है। हम तुमको खाली एग्जांपल देते हैं। हम हिमांशु से पूछते हैं, हिमांशु तुम्हारा जयपुर से दिल्ली का ट्रिप कैसा रहा? बहुत अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा। देखो गौरव, तुमने सुना क्या बोला? बहुत अच्छा। इस लेकिन उस जर्नी में बहुत कुछ हुआ, इसने हमको कुछ नहीं बोला। हाँ, क्योंकि सारे आपने सारे इंफॉर्मेशन इसने डिलीट कर दी। हम्म, फिर उसने क्या किया, जनरलाइज कर दिया कि बहुत अच्छा हुआ। हो सकता है रास्ते में कुछ तकलीफ भी हुई हो, जाम में फंस गए हो, कुछ तकलीफ हुई हो, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन तुमने जनरलाइज कर दिया, अरे यार बढ़िया हो गया, बढ़िया ट्रिप रहा। तुमने अगर हम और तुमने क्या किया, तो डिस्टॉर्ट मतलब एक इवेंट को तुमने कहा कि बाप रे मस्त हो गया। फॉर एग्जाम्पल तुम कह सकते हो, अगर तुमको और कुछ पूछें तो तुमने कहोगे, जानते हो सर इतना जाम था ना, पूछिए मत। मतलब जाम में तो केवल 10 मिनट फंसे हो गए या आधा घंटा, मतलब लेकिन जर्नी तो 5 घंटे की थी ना। लेकिन तुम उस 10 मिनट का काम को 5 घंटे का इक्विवेलेंट बना दिए। सर इतना जाम था कि पूछो मत। इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन आता है तुम डिलीट, जनरलाइज, डिस्टॉर्ट करते हो। उसके बाद क्या होता है, तुम ये जो इंफॉर्मेशन को तुम ना टाइम स्पेस एनर्जी में, तुमको फुर्सत में बताऊंगा एक ट्रेनिंग सेशन में, कि तुम ना समय के अनुसार तुम उसको मीनिंग देना शुरू करते हो। जैसे किस समय तुम ट्रैवल कर रहे थे वो बहुत मायने रखता है, कैसे कर रहे थे बहुत मायने रखता है, क्या हुआ, कितना एनर्जी लेवल था वो मायने रखता है। फिर तुम क्या करते हो, लैंग्वेज क्या यूज करते हो। अभी जैसे तुमने क्या, बढ़िया इज अ लैंग्वेज दैट यू हैव यूज्ड। ओके, लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं, लैंग्वेज मतलब व्हाट इज द वर्ड यू यूज। बढ़िया। आई गिव यू नोट्स ऑन लैंग्वेज आल्सो। फिर मेमोरीज, मैंने पूछा कि कैसा रहा, तो तुम बोलोगे बढ़िया रहा। क्या बढ़िया रहा, तो तुम खोदोगे मेमोरी में कि हाँ सर ये 2-3 चीजें तो, दीपक 2-3 चीजें तो बड़ा अच्छा लगा। वो बोलोगे कहाँ से आया, वो मेमोरी से आया। इट्स ऑल स्टोर्ड इनसाइड। देन डिसीजंस, तुमने कुछ रास्ते में डिसीजंस लिए होंगे। कुछ मेटा प्रोग्राम्स, मतलब मेटा प्रोग्राम्स मतलब तुमको ये सब बताएंगे डिटेल में। कहने का मतलब ये है, वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिलीव्स, ये सब जो तुम्हारा माइंड, ये इतना इंफॉर्मेशन आया, इतना जगह प्रोसेसिंग हुई, 1 2 3 एंड 6 9 प्लेसेस में प्रोसेसिंग हुई है। जब ये प्रोसेसिंग होता है तो तुम एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाते हो। अभी जैसे मैं तुमको बोला बढ़िया, तुम्हारे मन में एक पिक्चर बन गया है कि बढ़िया होता है। बढ़िया मतलब कुछ एक पिक्चर है जिसको तुम कहते हो बढ़िया है। उस बढ़िया की वजह से तुम्हारे बदन में ना कुछ, तुम्हें अच्छा या बुरा लग रहा है ना, कुछ भी लग रहा है, लेकिन कुछ महसूस कर रहे हो। और जो महसूस करते हो, जैसे महसूस करते हो, तुम्हारे बदन में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि तुमको अच्छा लग रहा है तो तुम कहोगे सर मजा आ गया, तुम्हारा फिजियोलॉजी चेंज हो जाता है, हाथ हिलने लगा। अगर सर कहोगे इतना जाम था ना, इतना जाम था ना, तो ऐसे सर पकड़ोगे, तो फिजियोलॉजी चेंज हो जाता है। जब फिजियोलॉजी चेंज होता है तो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है, फिर स्टेट आता है, दैट इज इमोशन से, फिर फिजियोलॉजी, फिर वापस स्टेट बनता है, या फिर एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनता है। फिर क्या होता है, तुम्हारा ये बिहेवियर बनता है। और जो बिहेवियर हम तुम्हारा जैसे अभी देख रहे हैं, अपना यहाँ लगा कैसे बैठे हुए हो, हर्ष ऐसे बैठा हुआ है, नहीं जैसे बैठे हो, आई एम ओके विद इट, जैसे, तो वो जो है तुम्हारा बिहेवियर जो है, इज द कल्मिनेशन ऑफ me talking so million bits of information hitting your senses. You are deleting, distorting, generalizing it. You are actually processing it in using language, decisions, meta programs, values, attitudes जो तुम्हारे हैं, उसको लेके एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाए हो तुम मेरे बारे में, जो अभी हम तुमको बता रहे हैं। उससे तुम्हारे इमोशनल स्टेट कुछ हो रहा है, उससे तुम्हारा फिजियोलॉजी में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि तुम ऐसे बैठ रहे हो,
या अटेंटिव मोड में हो, वहां से तुम्हारा एक बिहेवियर बन रहा है, मैं तुम्हारा बिहेवियर देख रहा हूं, लेकिन इस बीच में बहुत कुछ चीजें हो गई हैं। इतना तुम ध्यान रखना। इतना समझ में आया? यस। हाँ, मैं तुमको थोड़ा सा और ये करूंगा, एक बार तुम अपने लैंग्वेज में बोलना जरा सा, क्या समझ में आया, बिकॉज देन आई विल बी एबल टू ऐड एंड सपोर्ट यू टू बिकम वेरी क्लियर ऑन दैट। अगर मतलब इसके 2-3 मायने अगर निकाले जाएं तो इसको ये भी हो सकता है कि यार देखो एक टास्क है, हमें अगर वो करना है तो वो हमें ही करना है, अब चाहे रोके करो नहीं, ऐसे चाहे। मत सोचो कि तुम सोचो ऑफिस में एक इंसिडेंट हुआ, उसको लेके बोलो। ऑफिस में सपोज एक इंसिडेंट हुआ, अभी तुम्हारे हाँ, सामने होगा, या तुम ट्रेनिंग में हैं, सोचो ट्रेनिंग में है तब बताओ, उस सेंस में बताओ। ओके, हाँ, तो ट्रेनिंग में है, लाइक अगर आपने जैसे ही मुझसे पूछा कि कैसा रहा सफर, तो मुझे सफर में जो कुछ परेशानियां भी हुई थी, वो बात बिल्कुल आपकी सही है, कुछ परेशानी हुई थी, पर वो परेशानियां इतनी छोटी हैं कि जो मैंने वहाँ चीजें एंजॉय की हैं वो उन पे हावी नहीं हो पा रही, राइट। तो वो पहले आ जाती हैं जब जब भी मैं, आप पूछ रहे हो कि सफर कैसा रहा या फिर जयपुर कैसा रहा, तो सबसे पहले मेरे दिमाग, मेरा जो माइंड फंक्शन करना शुरू करता है, वो वहीं से शुरू करता है कि यार मैंने वहां पर क्या क्या किया, क्या क्या अच्छा किया, जो मैं इतना टाइम से नहीं कर रहा था या जो शायद इतना टाइम से रुका हुआ था, या जिसकी मुझे इतनी ज्यादा नीड थी कि मुझे यार एक अलग प्लेस चाहिए, अब मुझे एनवायरनमेंट चेंज चाहिए थोड़ा सा, इतना टाइम हो गया एक जगह बैठे बैठे काम करते हुए, अब मुझे अपने फ्रेंड्स से मिलना है या फिर एक अलग एनवायरनमेंट चाहिए। तो वो चीज है कि वो जो इतना ज्यादा अच्छी मेमोरीज हैं, वो इतनी छोटी मोटी चीजों के कि बस में क्या हुआ या फिर यहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे क्या, उन पे वो बहुत ज्यादा हावी हैं, वो उनको आने ही नहीं दे रही, मतलब ऐसा कुछ। इसीलिए फर्स्ट बार में मेरा लगा कि हाँ बहुत बढ़िया। अब तुमने देखा, तुमने क्या बोला, तुम अपने लैंग्वेज में मीनिंग दिए कि वो छोटी चीज की कोई वैल्यू नहीं, वो तुम्हारा एटीट्यूड है, बिलीव्स है। हाँ, हम बोर हो गए थे, हमको फ्रेंड के पास जाना था, उसी वहां जाके लौट के आ रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। ये तुम्हारा वो है, मेटा प्रोग्राम्स हैं, और तुम्हारे डिसीजंस है, तुम्हारे मेमोरीज हैं। बहुत कुछ चीजें हुई, तुमने उसको नकार दिया, तुमने कहा उसकी अभी बात उतनी जरूरत नहीं है बोलना, तुमने डिलीट डिस्टॉर्ट जनरलाइज किया। देख रहे हो, ये सब जो तुमने किया, ये क्या तुम्हारे मन में एक पिक्चर है अभी जयपुर जाने का, तो तुम जयपुर में गए और तुमको कैसे अच्छा लगा, कितना अच्छा लगा, और तुम्हारे बॉडी में कुछ चेंजेस आए, फिजियोलॉजी चेंजेस आए, वही बिहेवियर तुम हमको आज दिखा रहे हो। अब समझ में आया? बहुत सिंपल है। तो हम क्लियर, हर्ष, हाँ, क्लियर? यस। कहने का, हाँ, आई थिंक मैं इसमें बस ये ऐड करना चाहूँगा कि मतलब हिमांशु का पॉइंट भी अच्छा है, और मैंने जो फील किया वो ये था कि मतलब मैं एग्जांपल जैसे देना चाहूँ तो मान लो कि मेरे मैनेजर ने मुझे कोई कॉन्फ्रेंस में कुछ प्रेजेंटेशन देने का, तो जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन हम प्रेजेंट कर रहे हैं, तो सबके पास जो इंफॉर्मेशन जा रही है उसको जो आपने बोला था जनरलाइज या डिस्टॉर्ट करके हम उसी चीज़ को प्रोसेस करेंगे जो हम काफ़ी अच्छे से या तो एक्सप्लेन करते हैं या उसे इंटरेस्टिंग वे में बता पाते हैं, और बाकी सब हम हमारे सबकॉन्शियस में चला जाएगा। तो इट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि हम किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं हमारी चीज़ों को, और उससे एक परसेप्शन हमारे मैनेजर के माइंड में ही बनता है कि हाँ ये एक अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकता है या फिर ये इतना अच्छा नहीं है। तो आई थिंक ये भी एक कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं। या, देखो, एग्जैक्टली जो तुम लोगों ने बोला वही हम तुमको बता रहे हैं।
तुम लोग इतना याद रख लेना, तुमको मालूम है, मैं तो एक बड़ा थियोरेटिकल एग्जांपल, इस मोबाइल से फोन करते हैं और एक और मेरे पास सोचो मोबाइल है, तो तुमको मालूम है इस मोबाइल से निकलेगा और इस मोबाइल पे पहुंचने में तुम्हें लगता है बस यहाँ से निकला यहाँ पहुंच गया, पर तुमको मैं बताऊं हकीकत में क्या होता है, यहाँ से जाता है टावर पे, इंफॉर्मेशन टावर पे जाता है, टावर पे से निकलता है तो बीएससी में जाता है, मतलब वो बीएससी एक बेस होता है, बेस से बीएससी से निकलता है तो एमएससी जाता है, एमएससी एक मल्टी स्विच सेंटर है, मल्टी स्विच सेंटर वो कोड से ढूंढता कि यार ये वाला नंबर कहाँ है, उसको ढूंढता है, तो वो दूसरे एमएससी को कांटेक्ट करता है कि यार ये है कहाँ ये नंबर, वो ढूंढता है, ढूंढता ढूंढते क्या करता है, उसको मिलता है एक नंबर, तो वो क्या करता है वो नंबर एमएससी बोलता है कि यहाँ है पड़ा हुआ है, तो एमएससी उस एमएससी में जाता है, उस एमएससी में जाता है, फिर वहां से एक बेस पे जाता है, एक और बेस पे जाता है, बेस से फिर वो ढूंढता है इस टावर पे ये हिमांशु खड़ा है या हर्ष खड़े है, तो उस टावर पे पहुंचता है। नाउ बिटवीन दिस एंड दिस तुम तो डायल किए, कितने सेकंड में पहुंचा, तुरंत रिंग लग गया, लेकिन कितना टेक्नोलॉजिकली कितना स्टेप्स किया, ह्यूज। तुम लोग सब इंजीनियर्स हो, तो जैसे हिमांशु हर्ष यू आर एन इंजीनियर, हिमांशु आर यू एन इंजीनियर? नहीं, मेरा दीपक बैकग्राउंड फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स, ओके, सो हर्ष वुड बी प्रॉब्ली अंडरस्टैंडिंग, हर्ष तुम इंजीनियर हो ना? या मैं तो काफी अच्छे समझ रहा हूँ। हाँ, तो तुम समझ रहे हो ना कि यहाँ से तो एक सेकंड में पहुंच गया, ट्रेस कर लिया कि कौन मोबाइल कहाँ है, लेकिन टेक्नोलॉजिकली बहुत बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ा। वैसे ही ब्रेन होता है, so when I receive some information from you, like event हो रहा है, receive, but that's lots of processing that's going on to my head. हम delete, generalize, distort करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, मेटा प्रोग्राम्स बनाते हैं, values, beliefs, attitude, ये सब काम करता है, उससे हम एक मैप बनाते हैं, अपना मैप बनाते हैं, तो उस मैप से हमको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मेरे बॉडी में कुछ महसूस होता है, उससे मेरा बिहेवियर चेंज होता है, वो बिहेवियर मुझे दूसरों को दिखता है। तो तुम अगर कोई बात बोलते हो किसी को, उसको अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसे तुम कहते हो कि वो कहता है कि इंट्रोवर्ट है, कि हिमांशु इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा इज गुड इन नॉलेज बट इंट्रोवर्ट है, तो सोचो किस तरह से नॉलेज प्रोसेसिंग किया है। There are some behaviors and actions that he has received and his mind has processed. It has generalized, distorted, and deleted. It has processed through his attitude. उनके अपने attitudes और beliefs से वो उन्होंने process किया। फिर उन्होंने तुम्हारे बारे में एक मैप बनाया, बंदा अच्छा है लेकिन थोड़ा इंट्रोवर्ट है, वो तुमको दिखा देता है बिहेवियर। अब समझ लो कैसे बन रहा है। अब तुमको अगर हम तुमसे कहते हैं कि ये बिहेवियर चेंज करना है, तुम चाहोगे कि तुम क्या चाहते हो कि तुमको देखे कि वो इंट्रोवर्ट हो, तुम इंट्रोवर्ट हो? क्या चाहते हो तुम, वो तुम्हें क्या महसूस करेगा तुम्हारे बारे में? मतलब मैं चाहता हूँ कि उसको लगे कि नहीं ये अपनी चीजें सही से एक्सप्लेन कर सकता है, और उसको अगर वैसे उसको, मुझे ये पता है कि मेरे मैनेजर को इतना तो है बिलीव मेरे पे कि मतलब अगर मैं इसे टास्क देता हूँ तो ये उसको अपने पूरे पोटेंशियल के साथ करता है और बल्कि उसमें अपनी नॉलेज भी पुट करता है। बट द थिंग इज कि ये मतलब उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है या फिर वो सब चीजें हैं। तो तुम क्या चाहोगे कि वो एक इंटरनल रिप्रेजेंटेशन बनाए अपने माइंड में कि मैं कैसा हूं, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हारे बारे में एक मानसिक पिक्चर बनाए कि मैं मस्त आदमी हूँ, समझाता बहुत अच्छा, नॉलेजेबल हूँ, बहुत आई कैन डू थिंग्स। तो तुम यही चाहोगे ना हर्ष? तुम भी चाहोगे ना एक पॉजिटिव रिएक्शन? यस।
डेफिनेटली। जानते हो पूरा कहानी जो है, परसेप्शन जो है, वो इंटरनल रिप्रेजेंटेशन पे है। मैं जो बोलूंगा तुम्हारा मन वैसे ही करेगा। मैं तुमको बताऊं, मैं तुमसे बोलता हूँ और हिमांशु और हर्ष, जरा सर के अपना आगे देखना, एक ग्रीन रंग का एलिफेंट तुम्हें दिखेगा। देखो जरा, ग्रीन ऊपर देखो तो एक ग्रीन रंग का एलिफेंट दिख रहा है। तो तुम्हारे माइंड में एक्चुअली एक पिक्चर बन जाएगा कि एक ग्रीन एलिफेंट है। पिक्चराइज कर पा रहे हो? देखो, लैंग्वेज एक ऐसा चीज होता है ना, तुम्हारा बात तुम्हें कहां से कहां पहुंचा देगा तुम्हें मालूम नहीं। तो उससे क्या होता है कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन तुम बनाते हो। आज मैं तुमको थोड़ा बता रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, बट आई एम गोइंग टू सेट द फ्रेम की परसेप्शन कैसे बनता है और तुम्हें करना क्या है। परसेप्शन, तो अब तुमको समझ में आया परसेप्शन क्या होता है? यस दीपक। क्या समझ में आया? मैं अगर परसेप्शन जो हम इंटरनल परसेप्शन हमारा वही है जो हम किस प्रकार चीज़ों को प्रोसेस करते हैं, इतनी इंफॉर्मेशन हम ले पाते हैं, और हम उस अल्टीमेटली जो भी हम एक्सपीरियंस से गो थ्रू करते हैं उसके हमारे दिमाग में क्या इमेज रहती है उसके। वो एग्जैक्टली वो इमेज, जैसे कि तुम्हारे एक खास फ्रेंड के बारे में एक इमेज है तुम्हारा, है कि नहीं? तुम्हारा हाँ। सबसे दोस्त है। अब जैसे कि हिमांशु गया है शुभांग के बारे में, एक तुम पिक्चर बनाते हो ना शुभांग के बारे में कि हम उसके पास जाएंगे, तो वो एक इमेज तुम्हारे मन में है। मेरा जिगरी यार है, मेरा दोस्त है, हम लोग मस्त फ्री होके जा सकते हो, एक इमेज है। उस इमेज से तुम्हारा परसेप्शन बना है। लेकिन सोचो वो हम इमेज ही बदल दें, हम ऐसा कुछ करते हैं कि शुभांग के बारे में तुम्हारा उस इमेज ही बदल देते हैं, तो क्या होगा? मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, परसेप्शन बदल जाएगा, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, तुम शुभांग के साथ डिफरेंटली बिहेव करोगे। इट्स अ मैसिव थिंग आई हैव टोल्ड यू, यू नो, जस्ट थिंक अबाउट इट। अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। वो परसेप्शन ठीक है, वो जैसे हर्ष बोला, वो इमेज चेंज करना पड़ेगा उस व्यक्ति के बारे में। लाइक अगर मैं अपने मैनेजर के सामने जा रहा हूँ तो मुझे ये हटा देना कि वो मेरे बारे में नेगेटिव ही सोचेगा या फिर मेरे बारे में यही सोच रहा है। वो मुझे लगेगा तो कि वो नेगेटिव, वेरी गुड, वेरी गुड। वो एक इमेज है कि ये बंदा मेरे बारे में नेगेटिव ही सोच रहा है, उसको रिप्लेस कर दो एक पॉजिटिव, वो अपना काम कर रहा है। यही सोचो कि वो अपना काम कर रहा है, वो क्यों मुझसे नाराज रहेगा? कोई मेरे पर्सनल दुश्मनी तो नहीं है। बस यही इमेज से डाल दो यार, वो अपना काम कर रहा है, इज अ मैनेजर, एक्सपीरियंस बंदा है, इज डूइंग हिज जॉब। अब तुम्हें कैसा लगेगा? अब बेफिक्र हो जाएंगे हम थोड़े से कि हाँ ठीक है, लेट हिम डू जो भी अभी कर रहा है, हमें अपना काम कर रहा है बस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। आज समझ में आया? हाँ, इससे ज्यादा हाँ मतलब हम दीपक। ये सोच सकते हैं कि इससे ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं, मतलब ठीक है वो अपना काम कर रहा है, हमें बस अपना काम करना है अपने एंड से। तुम खाली इमेज पे रहो, हम इमेज ही बदल देंगे तो वो हमारी सोच बदल जाएगी। अब इमेज, कैसा इमेज चाहिए तुम वो डिफाइन कर सकते हो। तुम ये सोच सकते हो कि नहीं वो बहुत अच्छा आदमी है, वो तुम सोच सकते हो वो अपना काम कर रहा है, तुम सोच सकते हो कि वो कुछ भी इमेज बना दो, सैकड़ों हजारों इमेज हुए हैं सामने तुम्हारे उसके बारे में। दीपक यहाँ पर अगर मैं एक चीज जोड़ूं तो यहाँ पर शायद ऐसा भी कुछ है कि सपोज मैं किसी गुरु के पास गया हूँ कुछ सीखने के लिए, म्यूजिक ही सीखने के लिए, ठीक है। और अगर मैं खाली बनने होके जाऊंगा, ठीक है, कि मुझे ये लगे कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, मुझे बस वहां जाके और सीखना है बिल्कुल एकदम, तो मैं ज्यादा सीख पाऊंगा बजाय इसके कि यार मुझे तो इतना आता है, अब मुझे यहाँ से ही सीखना है। तो वो कहीं ना कहीं वो मेरा जो थॉट प्रोसेस है वो वहीं पे ही अटका रहेगा, और अगर वो शायद कुछ अच्छा भी बता रहा होगा तो मुझे लगेगा कि नहीं यार ये मेरे मतलब का है ही नहीं, मेरा माइंड उसे प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा। तुम लोग में से ऐसे हंसी मजाक करते हैं, हर्ष और हिमांशु, तुम में से कितने लोग डांस करते हो?
मैं तो बिल्कुल नहीं कर पाता हूँ। अच्छा, तुमको मैं हंसी मजाक में बोलता हूँ। देखो ये अभी नवरात्र हुआ था ना, तो नवरात्र में तो मेरे यहाँ नीचे गरबा होता था। हाँ, मैंने फोटोज देखे थे आपके अच्छा कि मेरे ये चाचा ने तुम भेजा सोच, था। हाँ, जब ये गरबा होता है तो एक बात बताओ, मुझे ना मन करता है पर मैं डांस नहीं कर पाता हूँ। अब देखो अब क्यों हम कर नहीं पा रहे हैं, जबकि मुझे मालूम है, पर मुझे एक परसेप्शन बन गया यार, अब छोड़ना, वॉचिंग इज बेटर, यू नो, डांसिंग इज नॉट गुड। मेरे मन में एक परसेप्शन है कि यार डांस क्यों नहीं कर रहे, जाने दो यार, बच्चों का काम है। नहीं, बट आई एम, हमारे मन में क्या एक परसेप्शन बन गया, इमेज बन गया है कि डांस उनको देखना ठीक लगता है, डांस करना मजा नहीं आता। समझ रहे हो ना मेरी बात? और शायद इसलिए भी कि कोई हमें देख रहा होगा, हम पता नहीं कैसे डांस करेंगे। हाँ, ये सब इमेज बना लिया अपने मन में। हम्म। वो इमेज की वजह से हम, मेरे में रेजिस्टेंस हो गया, मैं नहीं जा पाता हूँ डांस करने। ये हर्ष तुम्हारे साथ भी होता होगा? बिल्कुल होता है। हमें याद है कि हम तो इट्स डिस्को नॉट देखने जस्ट, गए। हाँ, हाँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट द इमेज। एक दो बार मतलब ऐसा भी हुआ है कि मुझे फील हुआ कि जो मैंने डांस किया वो बहुत, या मुझसे हो नहीं रहा था, और वो एक बैठ जाता है फिर, तो फिर हम उस टास्क को वापस कर ही नहीं पाते हैं, क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे वही इमेज बैठा हुआ है, या तो या फिर हमें लगता है कि वही चीज वापस होगी जो हमने गलत किया था पिछली बार। आप समझ में रहे हो? एवरीथिंग इज अबाउट इमेज। लाइक अगर हमारी जगह कोई शायद बच्चा हो तो वो तो बेफिक्रा नाचेगा, उसे कोई मतलब नहीं है कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, वो एंजॉय करके और निकल लेगा। या देखो लेडीज कितना अच्छा डांस कर लेते हैं, लड़कियां कर रहे हैं, हाँ वही देख रहे हैं, बच्चे कितना अच्छा हम कर नहीं पा रहे। एक परसेप्शन, दैट इमेज स्टॉप्स यू। That image stops, and because it stops you, you are stuck. जिंदगी में बहुत चीजें जो है, तुम अभी कल हम अगले सेशन में तुमसे लेंगे, ये जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है तुम अपनी लाइफ से रिलेट करना। तुम कैसा इमेज बनाए हो अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने मन में, अपने भाई बहन, अपना, अपने स्पाउस, अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में, अपने मैरिड हो तो वाइफ में, बच्चों के बारे में, एनीवन, क्या इमेज बनाए हो? जस्ट थिंक अबाउट इट। दैट इमेज इज सो वाइटल कि तुम्हें धीरे धीरे पता चले। प्रिया, यस दीपू। we'll stop at this point क्योंकि वो ज्यादा नहीं कर रहा है। I think 30 minutes we spent good to understand this concept, but ये concept को overall समझ में आ गया? Overall या एकदम काफी क्लियर है। काफी क्लियर है। This is where the perception begins. अभी तुम कुछ नहीं कहे हैं, अभी तो तुमको एक चीज कहें। There are lots of things how to handle this perception we will discuss. एक अपना परसेप्शन कैसे चेंज करें, एक दूसरों का परसेप्शन कैसा चेंज करें अपने बारे में, वो अगले सेशन में करेंगे। फॉर एग्जांपल हिमांशु का अपने मैनेजर के बारे में एक परसेप्शन है, वो सोचता है मैनेजर मेरे बारे में ऐसे सोचता है, कैसे मैनेजर का परसेप्शन तुम्हारे बारे में चेंज करोगे? एक सेल्फ परसेप्शन चेंज करेंगे, लेकिन एक उनका परसेप्शन कैसे एक्टिवेट करोगे? We will learn all these tricks over the next 2-3 weeks. Sure, Deepak. Yeah. So I will. This is what we covered, and नेक्स्ट वीक में हम चाहेंगे कि तुम ना ये NLP कम्युनिकेशन मॉडल थोड़ा सा तुम हमको बताना। मैं तुमको ना 2-3 चीजें दिखा रहा हूँ। एक मिनट, मैं तुमको कुछ फाइल्स भेज रहा हूँ। रुको, तो दीपक आप जो शेयर कर रहे हो उसको गो थ्रू करके फिर उसके बाद आप मतलब पूछेंगे ऐसा कुछ? नहीं पूछेंगे नहीं, मतलब आप उस लोग पे थोड़ा हमको डिस्कशन। शेयर करना कि तुम लोग क्या समझे हो। क्या इससे क्या कि थोड़ा सा हम ये टीच बैक सेशंस भी होंगे,
टीच बैक सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि कल तुम जाओगे ना, हर्ष और हिमांशु, जब तुम खड़े होके तुमको एक स्पीच देना होगा, सोचो तुम बोलोगे, तो यू कैन रिलेट सम कॉन्सेप्ट्स एंड टॉक बैक. So we will discuss two things will be very important in our sessions. First thing is we spend 15 minutes to understand your organizational experience every day, every time. Next 10-15 minutes spent on teach backs. तुमने जो last week सीखा, जरा उसको synopsis में बताओ. Okay, and then we learn some concepts. Okay, and then we close. Okay, so and I will just share with you something. I have written some. ये देखो, मैं तुम्हारे लिए 5 फोल्डर मेरे पास है, तो मैं तुम लोग को ना ये NLP कम्युनिकेशन मॉडल एक है, ये दिख रहा है क्या? NLP कम्युनिकेशन मॉडल है? हाँ, इट्स विजिबल. तो ये देखो, मैंने ये बनाया हुआ है. व्हाट इज दिस, व्हाट डज इट डू, ठीक है, हमने एकदम तुम्हारे लिए बनाया है. एंड मैं क्या क्या है थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया है. तो एवरीडे एग्जांपल्स मैं तुमको दे दिया हूँ. हाउ इज नोइंग अबाउट NLP कम्युनिकेशन मॉडल यूजफुल, कैसे काम आएगा, किससे काम आएगा, तुमको बना के दे दिया है. Who will find it useful. एक्सरसाइज कुछ मैंने बनाया है. अब जैसे एक्सरसाइज मैंने कहा है कि तुम यू वॉच एनी न्यूज चैनल, कोई न्यूज चैनल वॉच करो, वॉच द व्यूज फ्रॉम द स्पोक्सपर्सन्स पार्टी. एक जैसे कि आजकल कुछ हो रहा है फार्मर्स, लेकिन 5 पॉलिटिकल पार्टी आती है, 5 व्यूज देती है. एंड ऑफ द डे उनकी परसेप्शन है ना, तो तुम सोचो क्या इमेज वो बना के रखते हैं, वो इमेज के बारे में सोचो. ऐसे ही मैं तुमको एक्सरसाइजेस दिया हूँ, ठीक है, तुम ऐसा एक्सरसाइजेस करोगे. ऐसे मैं तुमको एक लैंग्वेज के ऊपर दे रहा हूँ. आज तुमको 2 ही दूंगा लैंग्वेज के, जो से तुमको आज पता है ना, हल्का सा टच किए कि so many bits of information, फिर डिलीटिंग, डिस्टॉर्शन, वो सबको बता दे रहे हैं. So very simply I've done what is language, what does it do, how can we overcome misunderstanding, everyday examples, that we will do all that. ठीक है, तुम्हारे आज तुमको ये 2 फोल्डर भेज देते हैं. And then what you do is this, you will find it useful. Done? So notes भी ऐसा बनाए हैं कि you will segregate कर दिए हैं, so जो तुमको जैसा चाहिए वैसे तुमको मिलेगा. ओके. दीपक, ये नोट्स मतलब व्हाट्सएप पे मिलेंगे या फिर? हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, तुम उसको डाउनलोड करके अपने उसमें ले लेना. अभी हम डाल देंगे, थोड़ी देर में डाल देंगे. हाँ, हम तुम लोग के बना दें, और नेक्स्ट वीक भी 2 देंगे और उसके बाद वाले भी वीक देंगे. 5 folders I have made for the perception pattern. So for 3 sessions we have on perception. That should take care of you. मेरा ये पर्सनल फील था कि मेंटरिंग में मैंने जो एक्सपीरियंस किया था कि मेरे बारे में लोग ना हमेशा कुछ सोचते थे जिससे मुझे बहुत इम्पैक्ट होता. तो मैं सोचा पहला चीज यही बनाएंगे, perception battle. परसेप्शन. ओके. दूसरा चीज ये मुझे तुमसे कहना कि सैटरडे के दिन अपने आप को फ्री रखना. So there is a training program on design thinking. That we will be doing in November, but we design thinking मैं कर लेता हूँ क्योंकि काम आएगा तुम्हें नौकरी में अभी. So we will pace it equally, but you will start learning this. ठीक है. So around 10 o'clock केवल तुम लोग के लिए है, 6 of you के लिए, और किसी के लिए 1-2 लोग बाहर से आएंगे, पर तुम्हारे लिए यही है, इतनी समझ में. ओके. So all 7 of you will be there. Plus, I think 1 or 2 more people will come. Okay. So this is they are not the part of the mentoring batch, but they will be coming. So तुम लोग रहना, so you will get some knowledge. You will get understanding कि क्या क्या होता है. So it will be building up तुम्हारे. Okay. Sure. But only one training a month. So ये मत सोचना every Saturday in November. फिर तुम लोग को तंग नहीं करना चाहते, बट एक रहेगा. नेक्स्ट November might be on communications. How do you
how you become a masterful communicator. कैसे masterful communicator हो गए? So we'll teach you all that. है ना? हाँ? ये जो भी फाइल मैं तुमको दूंगा ये सिर्फ तुम्हारे लिए है. हाँ? Don't share with anyone. There's only with Sure. ठीक है. Okay, so as I close the session, feedback. What did you like? What did you not like? What would you like to improve next time? Madam, मैं ये जो session about the session, was it good? So you know, and how you want to be different next time? Regarding the session, Deepak, it was really good because I think कि काफी examples आपने provide किए जिससे काफी clear हुआ concept regarding the perception and yes, I think मैं अभी safely कह सकता हूँ कि मुझे काफी अच्छी understanding हो गई है concept के बारे में. और अगर कुछ मतलब इम्प्रूवमेंट के लिए कहना है तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि आई थिंक मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मे बी हम थोड़ा सा सेशन छोटा कर सकते हैं और क्योंकि लिटिल बिट मुझे लगा कि कुछ जगह हम थोड़ा लंबा ले रहे थे और बस मेरा वही एक फीडबैक है. बाकी रेस्ट ऑल इज Perfectly fine. So वो जो Yeah. discussion हो रहा था तो उसमें ज्यादा concept sharing में ज्यादा जा रहे थे कि वो stories में कहाँ? So concept sharing is good. I think कुछ particular examples थे जो I think थोड़े time consuming हो गए. कुछ particular examples बस वही थे. बाकी it was all good. So concept I totally understand कि concept में तो I think काफी requirement है. तो इसलिए I'm not saying about that. Only about the some of the examples. अच्छा वो हिस्ट्री वो माहौत वाला तो लगा थोड़ा ज्यादा हो गया. हाँ आई थिंक मे बी माहौत वाला भी आई थिंक सो या थोड़ा पर इट वाज गुड. इट वाज अ रियली गुड एग्जांपल. Done. चलो थैंक्स सो मच. हाँ हिमांशु. सो दीपक मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा. बेसिकली मैं जैसा हूँ मैं ऐसा यहाँ पे खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सबसे बड़ी चीज ये है, राइट. और मैं आज खुल के अपनी चीजों पे बात कर पा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा बड़ी चीज है. एंड एक दो मेरे क्वेश्चंस थे कि लाइक जो अभी आपने स्टार्टिंग में जो हमने वहाँ पे स्टिकी नोट्स जो वहाँ पे हमने लिखे हैं तो उन सब पर भी क्या हम डिस्कस करने वाले हैं क्या? वो एक्चुअली तुमको समझ में आ जाएगा जो हमने आज बताया है ना, उसको पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा. ओके. वी विल डिस्कस ऑब्वियसली. तुम अगले बार आओगे हम तुमसे बोलेंगे एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल पे तुम हमको वापस समझाओ, हर्ष को समझाओ. फिर हर्ष को बोलेंगे, हो सकता है हर्ष को बोले कि हर्ष वो जो दूसरा वाला क्या है लैंग्वेज के ऊपर जो है उसके बारे में जरा तुम टीम को टीच बैक करो. है वो 5-5 मिनट देंगे तो दैट इज मस्ट. दैट इज अ मस्ट. एंड देन वी विल ऐड वैल्यू ऐड. जैसे तुम्हारे प्रेजेंटेशन पे हर्ष विल वैल्यू ऐड. तुम और हर्ष के लिए तुम वैल्यू ऐड करोगे, हम वैल्यू ऐड करेंगे. उससे क्या होगा कि we will get mastery over the concepts. After 3-4 sessions, हाँ, after 3-4 sessions तो मैं पता चल जाएगा कि तुम्हें ऑफिस में कैसे फायदा करता है. राइट. और क्या बोल रहे थे? मैं कह रहा था कि लाइक जहाँ पर वो हम की चैलेंजेस कह रहे थे ना, ठीक है, और लाइक उसमें था कि हम अभी क्या कर रहे हैं उस चीज के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए जो भी हमारे चैलेंजेस हैं. तो इन सब के ऊपर क्या हम डिस्कस करने वाले हैं या फिर कैसे, मतलब क्या कुछ वो जो हम वहाँ पे नोट डाउन जो हमने किया है. कौन सा की चैलेंजेस? यहाँ पे हमने इस ऐप पर जो नोट डाउन किया है ना, स्टिकी नोट्स हमने ऐड किए हैं आज के उसमें या अभी मैनेजर वाले से पहले. हाँ ये सब रिफ्लेक्शन है. कहीं ना कहीं बात उठेगी, यही सब लेके बात उठेगी. हर कॉन्सेप्ट के पीछे ये सब थीम्स लगे रहेंगे. जैसे आज इंट्रोवर्ट का हमने टच कर लिया. You said this, so we touched that, ना? But sooner or later we'll touch up everything.
No, we'll touch everything. बाकी मेरे लिए से और सारा कुछ पॉजिटिव है मेरे लिए, अभी ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं। The good thing is I'm checking with you is because I want you to enjoy the journey. I don't want to. इसपे एक तुमने लिखा था I want to feel good, you know, and relate with the, which is good. So I want you to feel good, be a part. नए चीज सीखो, नए चीज जानो. Right. Done. I'll not take much time. So it's now around 80 minutes, 83 minutes. So let's give it a this one. Have a nice week ahead, all of you, both of you, and enjoy your time. And अगर तुम्हारे मन में कुछ thoughts आता है तो तुम लोग उसको आके माइरो में जाके कुछ लिख लो, you know, लिख के स्टोर करके छोड़ दो, you know, then we will pick it up as the time comes. कुछ इंडिविजुअल किसी बॉक्स पे या फिर कहीं भी? या ऐसे एक बॉक्स बना लेना, थोड़ा सीख लो, थोड़ा उसको माइरो में सीख लेना. YouTube में बहुत अच्छा सिखाता है, उसमें तुमको लेसन्स हैं. माइरो में जाके तुमको वीडियो लेसन्स हैं. Done? चलो, enjoy and have a nice weekend. I'll see you on Saturday. ठीक है? Thank you, Brooke. You also enjoy your week. Okay, thank you. Thank you, Deepak. चलो, Thank you. Bye. Bye. bye bye. Bye.